Hello, in this video we are going to solve questions involving area of a sector. This is exercise 8B of your textbook. First of all, let's recap the parts of a circle. We have some circles drawn over here. This is the center. The distance from center of the circle to one edge of a circle, it is known as radius. Diameter, distance from one edge of the circle to the other edge but passing through the center. Arc, this is the outer boundary of the circle. So arc is a portion of the outer boundary of a circle. So this is an arc. And sector basically means that if we have the center, we have this radius and we have this radius, then this portion is known as sector. This complete portion, which consists of two radiuses and one arc, this is called sector. There are two types of sectors, minor sector and major sector. The smaller sector will be known as the minor sector, whereas the bigger sector will be known as the major sector. Now let's look at the student learning objectives, SLO of this lesson. You will be able to find the area of the sector of a circle by expressing the area of the sector as a fraction of area of circle. Now, what does it mean? We are going to explain it in the later slide. Now, this is an image of a sector. This is radius. This is again a radius, and this angle is theta. Theta is generally the symbol denoted to represent angle. Then we know the formula for area of a circle. Area of a circle is equal to pi r square. Now sector is a portion of a circle. Sector is a fraction of a circle. So area of a sector would be equal to a fraction of the area of circle. अब वो fraction how can we find that? थीटा कि वो जो पोर्शन जो सेक्टर हमें चाहिए वो कितने एंगल का है डिवाइडेड बाय टोटल एंगल्स ऑफ अ सर्कल विच इज 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल. सो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर इज थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, जिसका मतलब है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है दैट इज अ पोर्शन और फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. और अगर हम अपनी बैक स्लाइड्स पे जाएं तो यही हमारा SLO था. Find the area of the sector of a circle by expressing area of the sector as a fraction of area of circle. So area of sector जो है वो area of circle का एक fraction होता है, का एक part होता है. Now there are some formulas which we are going to use throughout this exercise. The first one is the formula for finding arc length. Arc length का formula we studied in the previous exercise as well. Arc length is equal to theta over 360 degree multiplied by 2 pi r. Arc length basically क्या होती है? जो circumference of the circle है उसका एक portion होती है. Circumference of the circle equal होता है 2 pi r के. तो उसकी जो portion है उसकी जो fraction है, how are we going to get it? Theta over 360 degree, angle divided by total angles. So arc length, we are already familiar with this formula. The next formula that we are going to study here is area of a sector. और अभी मैंने explain किया area of a sector किसके equal होता है? Angle, whatever the angle is, divided by total number of angles, which is 360 degree multiplied by pi r square. याद रखें arc length है, circumference से relate करेगा, 2 pi r आएगा. Area of sector है, it will relate to area of circle, तो यहाँ पे pi r square आएगा. Next is perimeter of a sector. Perimeter means sum of all sides of a sector, और जिसको मैं आसान वर्ड्स में कहा करती हूँ कि हमने we have to walk around the figure. So if this is the figure और उसके अराउंड हमने वॉक करनी है और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, so यहाँ से यहाँ तक the distance we have covered is r. Then यहाँ से यहाँ तक the distance would be arc length, जो भी हमारी arc length है.
and then again this distance is r, radius. So perimeter किसके इक्वल हुआ? Sum of all sides यानी r plus arc length, यानी कि perimeter is equal to arc length plus 2r. So these are the three formulas that we are going to use in this exercise. Now let's look at the roadmap, what I want you to do. First of all, I want you to continue watching this video tutorial and watch the video of question number 1, all parts very carefully. You might need to pause, rewind and replay if you don't understand anything. Once you understand this question, I'm talking about question 1, then the remaining exercise would be quite easy peasy. And I'm sure you will be able to solve the questions independently from question number 2 till 9. Still, I have given you the slides. I have prepared the slides. I will be explaining them in this video as well. So you can always tally your work from the slides in case you get stuck in any question. And the last step is celebrate. If you were able to independently solve the questions, then you need to celebrate your maths proficiency, maths mastery, and you can reward yourself with a chocolate, right? So let's jump onto the questions now. Okay, this is question number 1 of exercise 8B. Question is copy and complete the table for sectors of a circle. In A part, they have given us the radius and angle at center, and we are required to find arc length, area, and perimeter. Now, in all of the slides, I have written these three formulas so that if you need, you can have a quick look at them. Um, we are given radius and we are given angle. We have to find arc length. So what is the formula for arc length? This one. Arc length is equal to theta over 360 degree multiplied by 2 pi r. Angle which is given in this question is 72 and radius is 7. Plug in the values, use your calculator and find arc length. Yes, I know you must be saying that the question is quite easy. Well, it indeed is. Now, second part is we have to find area. Area of a sector is given by this formula, which is theta over 360 multiplied by pi r square. Plug in the values of theta and radius and use your calculator to find the answer. Remember that for arc length, the unit would be centimeters, whereas for area of sector, the unit would be centimeters square, unit square, whatever the unit is, that would be square in case of area. The next thing is perimeter. Formula for perimeter is this one, arc length plus 2 times radius. Arc length we have found in part 1 and radius is given in the question, which is 7. Plug in the values and you will get the answer. So I hope you found this question easy. Let's move on to the next part, B part. In B part, radius is given and perimeter is given. A quick hint to solve the question is that start with the quantity which is given. For example, here perimeter is given, so start with the formula of perimeter. In C part, area is given, start with the formula of area and then you can work out the unknown quantities. Similarly, in D part, arc length is given, so start with the formula of arc length and then we can find radius, and once we have got the radius, we can find the other unknown quantities. So let's get back. In B part, perimeter is given. The formula of perimeter is this. Write it down. In place of perimeter, substitute the value of perimeter, which is 136. And here radius is 35. So in place of radius, substitute 35. 2 into 35 is 70 and 70 goes to the other side. It will be subtracted and we get arc length, which is 66 millimeters. Now that we have got the arc length, we are going to fill the table as well. This is 66 meters. Now that we have got the arc length, we are going to use the formula of arc length, this one. In place of arc length, substitute the value which is 66. Plug in the value of radius. Now the only unknown quantity is angle theta. Theta के साथ 360 is being divided. When it goes to the other side, it will be multiplied with 66. With theta, 2, pi and 35. All these
three quantities are being multiplied. So when it goes to the other side, it will be divided. So 360 multiplied with 66 and 35 and 2 pi multiplied with theta, but when it goes to the other side, it will be divided and we get the value of angle, which is 108 degrees. Now we have got the angle as well, which is 108 degrees. The last thing that remains to be found is area. The formula of area is this one. Again, substitute the values of theta, which is angle, and radius. Solve it using calculator and you will get the value of area. So I hope you have understood the questions. Let's do two more parts and then you can do the remaining ones yourself. In C part, they have given us the angle and area. So start with the formula of area. Area of a sector is equal to angle divided by 360 degree multiplied by pi r square. Area की जगह substitute the value which is 1848. अच्छा, एंगल इज गिवन 270. ठीक है, अब रेडियस फाइंड करना है. आर स्क्वायर के साथ दिस क्वांटिटी इज बीइंग मल्टीप्लाइड. व्हेन इट गोज टू द अदर साइड इट विल बी डिवाइडेड. ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि 360 आर स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा. 270 पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन इट गोज टू द अदर साइड इट विल बी डिवाइडेड. गेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर. सिंस हमें रेडियस चाहिए, टू एलिमिनेट this square, we will take square root on both sides and we get radius which is equal to 28 millimeters. Once we have got the radius, बाकी सारी चीजें find करनी आसान हो जाती हैं. अब radius के बाद 28 millimeters. आर्क लेंथ पे चलते हैं. आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिखा, थीटा की जगह 270 लिखा, रेडियस की जगह 28 लिखा, सॉल्व किया, वी गेट द आंसर. इसी तरह पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा, आर्क लेंथ हमने फाइंड की भी है 132, वो लिख देंगे यहाँ पे, और रेडियस है 28, पेरीमीटर भी आ गया. नाउ डी पार्ट. इन डी पार्ट दे हैव गिवन अस द एंगल and arc length. So we will start with the formula of arc length which is 220 centimeters. Arc length का formula लिखा, substitute the value of arc length and angle. अब यहाँ पे unknown quantity हमारे पास radius है, r के साथ ये quantity multiply हो रही है, दूसरी side पे जाके it will be divided and we will get the value of radius. Once we have got the radius, अब हमें area find करना है. एरिया का फॉर्मूला लिखा, वी विल सब्स्टिट्यूट द एंगल एंड रेडियस, प्लग इन द वैल्यूज एंड आगे तो कैलकुलेटर का काम है. एंड लास्टली पेरीमीटर के लिए भी अगेन फॉर्मूला, प्लग इन द वैल्यूज ऑफ आर्क लेंथ और रेडियस एंड वी विल गेट द आंसर. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं. नाउ यू कैन डू ई एंड एफ पार्ट्स योरसेल्फ. You can pause the video right here. E and F parts कर लें आप लोग, और उसके बाद we can continue to the next questions. So if you have understood question 1, आगे के questions को इतने मुश्किल नहीं है. Question 2. Question number 2 is, for each of the following circles, find the perimeter and the area of the minor sector. यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया हमने माइनर सेक्टर का निकालना है. माइनर सेक्टर का मतलब छोटे वाला जो पोर्शन होगा, छोटा सेक्टर. सर्कल में दो सेक्टर्स हैं, मेजर एंड माइनर. जो स्मॉल एंगल, जहाँ पे स्मॉल एंगल है, जो स्मॉलर पोर्शन है उसको लेना है. इसमें वी हैव टू टेक केयर कि अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एंगल भी हमें माइनर सेक्टर का पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट में ये माइनर सेक्टर है, इसका एंगल हमें गिवन है. बी पार्ट पे ये माइनर सेक्टर है और इसका एंगल हमें नहीं गिवन है, तो इसका एंगल हम फाइंड करेंगे. वो कैसे करेंगे? एंगल जो है मेजर सेक्टर का दैट इज 340, तो माइनर का कैसे आएगा? 360 माइनस 340. तो इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पास एंगल जो है उसी पोर्शन का होना चाहिए, उसी सेक्टर का होना चाहिए जिसका हमने एरिया या पेरीमीटर फाइंड करना है. इसी तरह इधर दिस इज द माइनर सेक्टर और इसका एंगल हमें गिवन है, सो हम डायरेक्टली करेंगे, 360 में से माइनस नहीं करना पड़ेगा.
नाउ ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं पहले. वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर. वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर इक्वल होता है आर्क लेंथ प्लस 2r के. आर्क लेंथ हमें नहीं पता यहाँ पे. सो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वी आर गोइंग टू चिप इन इट. हम आर्क लेंथ की जगह आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे. थीटा इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई r. अब पेरीमीटर फाइंड करना है. एंगल इज 30 over 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई. रेडियस इज 7 प्लस 2r. तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा. इसी तरह एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला लिखा. इसमें थीटा की जगह 30 और रेडियस की जगह 7 पुट इन किया एंड वी विल गेट द एरिया. नाउ बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2. बी पार्ट में रिमेंबर कि मैंने बताया था कि एंगल के लिए एंगल हमने माइनर सेक्टर का फाइंड करना है. सो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. और वो कैसे आएगा? 360 में से 340 को माइनस कर देंगे. सो पेरीमीटर का अगेन फॉर्मूला लिखा. आर्क लेंथ की जगह आर्क लेंथ का फॉर्मूला पुट इन कर दिया और थीटा और रेडियस की वैल्यू पुट इन की. थीटा की जगह क्या लिखा? 360 माइनस 340. आप पहले से कैलकुलेट करके भी 20 डिग्रीज लिख सकते हैं. यूज कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ पेरीमीटर. इसी तरह एरिया के लिए जो सेकेंड पार्ट है एरिया, वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला. उसमें एंगल एंड रेडियस की वैल्यू पुट इन करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया. नाउ सी पार्ट इज टू बी डन बाय योरसेल्फ. आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई है और आप खुद कर सकते हैं. Okay, question number 3. It has again 4 parts. I'll be solving first part only and the remaining ones are to be done by you. Question number 3 is the figure shows a circle with center O and angle AOB is equal to theta degree. So this is the center O and angle AOB is theta. Circumference of the circle is 88. इधर उन्होंने they have given us circumference of the circle. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल गिवन है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन देख लेते हैं और क्या क्या गिवन है. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क का मतलब आर्क लेंथ. एंड एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब दिस फॉर्मूला will be used for each of the following values of theta. यानी कि हमें एंगल गिवन है और now we have to find arc length and area of sector. Since they had given a circumference of a circle is equal to 2 pi r. Circumference की value is 88. हम substitute करेंगे. यहाँ से we can find the value of radius. और radius हमारे पास आ जाएगा 14 centimeter. Once we have got the radius, now we can easily calculate arc length. Put in the formula. और फॉर्मूला में थीटा की जगह 60 डिग्री फर्स्ट पार्ट के लिए एंड रेडियस के लिए 14 सेंटीमीटर पुट करेंगे. अच्छा, ये जो 14 सेंटीमीटर जो रेडियस आया है ये चारों पार्ट्स में यही रहेगा बिकॉज ये जनरल स्टेटमेंट दी हुई है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 88. तो ये वैलिड है चारों पार्ट्स के लिए. हमें एक दफा अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमें हर पार्ट में अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसको. So arc length का फॉर्मूला लिखा, थीटा एंड रेडियस की वैल्यू पुट इन की एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ आर्क लेंथ. एंड डोंट फॉरगेट द यूनिट. आर्क लेंथ का यूनिट जो होगा वो यहाँ पे इट वुड बी सेंटीमीटर. देन वी हैव टू फाइंड एरिया. एरिया का फॉर्मूला लिखा, एंगल, थीटा और रेडियस की वैल्यू पुट इन की एंड वी विल गेट द आंसर फॉर एरिया. एंड नाउ आई एम श्योर कि आप रिमेनिंग पार्ट्स बी सी एंड डी खुद कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ एंगल जो थीटा है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, रेडियस सेम रह रहा है, 14 ही रह रहा है. सो डू बी सी एंड डी पार्ट्स योरसेल्फ. Now let's look at question number 4, A part. Again, this question has 4 parts. All 4 parts are similar. I'll be doing A part and you have to do the remaining parts yourself. Question number 4 is the figure shows a circle with center O and angle POQ is equal to X. So this is a circle with a center O and POQ. This angle is X degree
Area of circle is 3850 centimeters square. So here they have given us the area of the circle. Okay. Find the area of sector OPSQ. OPSQ यानी कि माइनर सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है एंड द लेंथ ऑफ आर्क PSQ. PSQ इस आर्क की आर्क लेंथ फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x यानी कि ये एंगल्स हमें गिवन है. ठीक है, x यानी कि एंगल. So for A part, angle is 36 degree. अब क्वेश्चन में they had given us area of a circle. अब वो क्यों दिया? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल की जगह पुट करें उसकी वैल्यू 3850, तो वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस. आर स्क्वायर के साथ पाई इज बीइंग मल्टीप्लाइड, व्हेन इट गोज टू द अदर साइड इट विल बी डिवाइडेड. So r square is equal to this number, and to remove the square we will take square root on both sides. So radius हमारे पास आ जाएगा 35 centimeter. Now that we have to find the area of sector, फॉर्मूला लगाएं एरिया ऑफ सेक्टर का. एंगल थीटा हमें पता है फर्स्ट पार्ट में 36 है और रेडियस 35 है. Substitute the values and we will get the answer. Similarly, arc length के लिए write down the formula. Theta is 36 again and radius is 35. Put in the values and we will get the arc length. अच्छा, अगेन इस क्वेश्चन में भी जो एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है दिस इज वैलिड फॉर ऑल फोर पार्ट्स. तो अगर एक दफा एरिया ऑफ सर्कल को यूज करते हुए हमने रेडियस निकाल लिया तो हमें हर पार्ट में अलग से रेडियस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो ये वाली इंफॉर्मेशन यानी कि रेडियस 35 सेंटीमीटर निकल रहा है जो, दिस इज वैलिड फॉर ऑल फोर पार्ट्स. तो बार बार करने की जरूरत नहीं है. ए पार्ट हो गया एंड आई एम श्योर यू आर इंटेलिजेंट इनफ. अब आप बाकी के पार्ट्स खुद कर सकते हैं. यस, so you will do the parts B, C and D yourself. Now let's move to question number 5. Question number 5 is find the radius of each of the following circles. We have to find radius. A part को देखें तो area of minor sector is 114. अब minor sector कौन से वाला है? This one. ठीक है, और इसी का एरिया गिवन है और इसी का हमें एंगल भी गिवन है. तो इसका मतलब है हमें दूसरा एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है. हम यहां से ही स्टार्ट कर लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से, या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया. एरिया ऑफ सेक्टर की जगह उसकी वैल्यू 114 पुट कर दी, थीटा की जगह 150 पुट कर दिया. अब यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी साइड पे जाके दे विल बी डिवाइडेड. रेडियस का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए we will take the square root on both sides and we will get the radius. It was this easy. इसके B पार्ट को भी देख लेते हैं. B पार्ट में they have given us area of major sector. Major sector ये वाला पोर्शन है. तो क्या हमें उन्होंने इस मेजर पोर्शन का जो ब्लू कलर से शोन है उसका एंगल दिया है? नहीं दिया. तो हमें ये खुद फाइंड करना है. और ये एंगल कितना होगा? अगर माइनर सेक्टर के लिए एंगल 66 है तो मेजर के लिए कितना होगा? 360 माइनस 66. तो सिर्फ ये चेंज है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में. बाकी द प्रोसेस इज सेम. वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर. थीटा की जगह वी विल पुट 360 माइनस 66. हम सॉल्व करके भी पुट कर सकते हैं. और इसके बाद 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इन दोनों को माइनस करें 294 आता है. पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. एंड जब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. अगेन क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स हैं. आई विल बी डूइंग ए पार्ट एंड बी सी डी आपने खुद करने हैं. Question number 6 is the diameter of a circle is 18 centimeter. Circle का diameter given है. Find the angle subtended by the arc of a sector with each of the following areas. Areas given है और हमने क्या find करना है? Angle find करना है. अगर diameter हमें given है, if you are given the diameter, so diameter से we can find radius by dividing the diameter by 2, because diameter को half करें तो we get the radius.
वी हैव टू फाइंड एंगल और एरिया गिवन है, तो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया. एरिया ऑफ अ सेक्टर इज theta over 360 multiplied by pi r square. Put in the value of area, which is 42.6, or theta as it is, 360 as it is, pi as it is, radius क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर. अब थीटा के साथ 360 डिवाइड हो रहा है, वो 42.6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. थीटा के साथ पाई एंड 9 स्क्वायर विच इज 81 वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. व्हेन इट गोज टू द अदर साइड इट विल बी डिवाइडेड और हमारे पास एंगल आ जाएगा. Now you have to do B, C and D parts of this question yourself. Question number 7. Question number 7 has 3 parts. और मैंने करना है एक पार्ट और बाकी के दोनों आपने खुद करने हैं. Okay, question number 7 is the figure shows two sectors OAB, OAB, this one which is shown with white, and ODC, ODC the bigger sector, with O as the common center. O इन दोनों का common center है. Okay, थोड़ा सा फिगर को स्टडी कर लेते हैं. O is the center. O से लेके A तक जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल r, एंड O से लेके D तक डिस्टेंस जो है वो इस बड़े वाले सेक्टर का है रेडियस. नीचे देखें तो O से लेके B तक तो स्मॉल r ही होगा. O से लेके C तक जो बड़ा सेक्टर है उसके लिए रेडियस इज कैपिटल R and M is denoting the angle. Okay. So given that OA, O से लेके A तक is R सेंटीमीटर, OC is capital R सेंटीमीटर, O से C तक capital R था. Angle AOB, AOB, this angle is M degrees. ठीक है, हमने टैली कर लिया फिगर के साथ क्वेश्चन को. Find the perimeter and the area of the shaded region ABCD for each of the following cases. हमने perimeter find करना है एंड एरिया फाइंड करना है ऑफ द शेडेड रीजन ABCD. ABCD यानी ये जो कर्व में पोर्शन है इसका हमने एरिया और इसी का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है. ठीक है, अब मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, सेकंड और थर्ड फिर आपने खुद करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो स्मॉल r इज 10. स्मॉल r का मतलब है O से लेके A तक, यानी ये 10 है. तो फिर यहाँ पे भी O से लेके B तक भी 10 ही होगा. कैपिटल R इज 20, यानी कि O से लेके D तक 20 है, तो O से C तक भी इट विल बी 20. M इज 45 और ये जो एंगल M है दैट इज 45. Okay, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट. अच्छा, हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब है कि A से लेके D तक की लेंथ, फिर ये जो आर्क लेंथ है D से C तक दिस लेंथ, देन लेंथ BC एंड लेंथ AB, जो आर्क लेंथ AB. वी हैव टू ऐड ऑल दीज फोर टुगेदर टू गेट द पेरीमीटर. आप रिकॉल करें कि वी हैव टू वॉक अराउंड दिस पाथ. ठीक है, इस फिगर के अराउंड अगर हमने वॉक करनी है तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो पहले देख लेते हैं कि आर्क लेंथ कितनी है. AB दिस आर्क लेंथ. ठीक है, ये जो आर्क लेंथ है इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर. ओके, सो इसके लिए जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है, एंगल 45 ही है, रेडियस 10 है. हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी ऑफ AB. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द बिगर वन. बिगर वन का मतलब है कि जो बड़ा वाला पोर्शन है दिस वन. ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास रेडियस है दैट इज 20. एंगल वही है, सिर्फ रेडियस चेंज होगा. वी विल गेट द आर्क लेंथ ऑफ DC. नाउ वी नीड द मेजरमेंट ऑफ AD एंड BC. क्या आप बता सकते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द मेजरमेंट ऑफ AD एंड BC? बिल्कुल, ये O से लेके C तक
20 है और O से लेके B तक 10 है, तो B से लेके C तक कैसे आएगी? 20 minus 10 which is 10. So कैपिटल R में से हम स्मॉल r को माइनस कर देंगे, ठीक है? So लेंथ ऑफ AD which would be the same as length of BC, वो कैसे आएगी? कैपिटल R minus small r which is 20 minus 10 which is 10 centimeters. So now we have all the measurements. ये जो चारों हमें चाहिए थी पेरीमीटर के लिए हमारे पास ये हैं. Now we can add all these to get perimeter. AD, BC, BC और AB इन AD, DC, BC and AB add करें, we will get the value of perimeter. Now we have to find area of the shaded region. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम बिगर सेक्टर में से यानी कि ओडीसी सेक्टर में से हम ओएबी पोर्शन को माइनस कर दें. सो हम फॉर्मूलाज लिखेंगे. जो हमारा बड़ा सेक्टर है ओडीसी, इसके रेडियस को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ है, तो इसलिए फॉर्मूला लिखते हुए जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने लिखा है वहां पे इसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है और इसमें से माइनस करना है स्मॉलर सेक्टर की एरिया को, उसका रेडियस को जो है वो स्मॉल आर से शो किया हुआ है, ठीक है? नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. कैपिटल आर इज 20, स्मॉल आर इज 10 एंड थीटा एंगल इज 45 डिग्रीज और सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया. I hope it is clear. Now you can do second and third parts yourself. Question number 8. In the figure, the area of the shaded sector POQ is 5 over 18 of the area of the whole circle. So in the question they are saying that area of the shaded sector is 5 by 18 of area of whole circle. Area of whole circle क्या होता है? It is pi r square. Of का मतलब multiply कर देना है. So एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन किसके इक्वल है? जो क्वेश्चन से हमने स्टेटमेंट लिया है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 5 by 18 ऑफ द एरिया ऑफ होल सर्कल. अच्छा, हमने क्वेश्चन के पार्ट्स नहीं पढ़े. फर्स्ट पार्ट इज फाइंड एंगल POQ यानी कि एंगल फाइंड करना है. यहाँ पे क्या एंगल है? एंड सेकेंड, गिवन दैट द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर इज 385, फाइंड द डायमीटर, यानी डायमीटर फाइंड करना है गिवन दिस एरिया और एंगल फाइंड करना है, ठीक है? अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसकी जगह आई कैन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर विच इज थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 by 18 एज इट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एरिया ऑफ होल सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. फाइंड मैंने एंगल करना है यानी कि ये थीटा फाइंड करना है. थीटा के साथ बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पे चली जाएंगी. 360 इज बीइंग डिवाइडेड, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा. पाई आर स्क्वायर इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद थीटा, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. अब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर की कटिंग हो जाएगी. 5 over 18 को when we multiply by 360 we will get the angle. Now second part. In second part it is given that area of the shaded sector is 385. अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये इन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 5 by 18 ऑफ द एरिया ऑफ होल सर्कल, ठीक है? और अब उन्होंने हमें एरिया दे दिया है. इस एरिया की क्या वैल्यू दी है? 385. सो 385 वैल्यू पुट इन करेंगे. 385 इज इक्वल टू 5 by 18 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर के साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास आर स्क्वायर का आंसर आएगा. और स्क्वायर को खत्म करने के लिए वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड वी विल गेट द आंसर विच इज 21. अच्छा, फाइंड हमने करना था डायमीटर, तो रेडियस से डायमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड वी विल गेट द डायमीटर. Finally, the last question of the exercise, question number 9. During an art lesson, students are required to make a shape in the form of a sector of a circle of radius 12 centimeters. If the perimeter of the shape is 38 centimeter, find the area of the paper used in making the shape. So art lesson में students ने एक shape बनानी है जो कि sector की form में है. So it would be something like this. ठीक है? और
इसका पेरीमीटर यानी कि टोटल जो इसमें यूज हुआ है, टोटल जो इसका लेंथ है दैट इज 38 और रेडियस है 12। क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ प्लस 2r। अच्छा, अब आर्क लेंथ हमारे पास नहीं है, हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया पेरीमीटर के अंदर, और अब यहां से हम एंगल फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, पेरीमीटर हमें गिवन है दैट इज 38, थीटा एज इट इज ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, रेडियस इज 12 प्लस 2r, रेडियस इज अगेन 12। यहां से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। 2 इंटू 12 इज 24, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, थीटा के साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड, और जो डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहां से हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब जबकि हमारे पास एंगल आ गया, हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया के लिए फॉर्मूला लिखा, एंगल हमारे पास आ चुका है 66, रेडियस हमारे पास है 12, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड वी विल गेट द आंसर। सो कैसी लगी ये एक्सरसाइज? आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड डूइंग दीज क्वेश्चंस। हैप्पी लर्निंग।